Okay, hello children. Now the same chapter, emerging technologies. We'll be doing the next emerging technology, that is cloud computing. This is the page from your book, from your textbook, cloud computing. So before starting cloud computing, let us imagine that there's in an office, a boss and employee are talking. Let us see what are they talking about. A boss says, I want to host a website. How do I do? We've learned how to host a website. What do we mean by hosting a website in the previous chapter? No? So the boss is asking the employee that I want to host a website of a company. How do I do? The employee says, you need a bunch of resources for the company, like a software, a server, database, and of course, a team of technical experts is required to monitor that website. The boss says, oh my god, all this is too tough. Do you have an easier solution to this? So the easier solution is cloud computing, the employee says. So what is this cloud computing? This will be studied. What do you mean by the word cloud here? Cloud refers to a network or internet. Cloud computing क्या हुआ? They've given us a big definition of cloud computing. It's a model for enabling convenient network access to a shared pool of computing resources like network, servers, storage applications, and services released with service provider interaction. Now, this definition you have to learn, of course, for the exam point of view. But इसको simplify करके अगर हमें understand करना है, तो what we mean here is that it is delivering of computing services. Services like the servers, databases, networking, software, etc. over internet. ठीक है, तो in the picture also we can see servers हैं, सर्वर लिखा हुआ है, क्लाइंट लिखा हुआ है, तो ये सॉफ्टवेयर भी होगा, नेटवर्क भी है, तो ये सब कुछ हम लोग यूज कर रहे हैं और एक क्लाउड बना हुआ है इंटरनेट, वहाँ पे इंटरनेट प्रोवाइडेड है. तो अभी इसको सिंपल लैंग्वेज में अंडरस्टैंड करते हैं. फॉर एग्जांपल, कैसे क्लाउड कंप्यूटिंग कैसे होती कैसे है. हमने एक अकाउंट क्रिएट किया है, ठीक है, वी हैव अ यूजर नेम एंड अ पासवर्ड. अब उस अकाउंट में हमने जो भी डालना है, मेरा अकाउंट है, सपोज दिस इज माय अकाउंट, whatever I put in that account is the content of that account and that lives with the content in the cloud. तो जब तक मेरा अकाउंट जिंदा है, वो कंटेंट एग्जिस्ट कर रहा है, और कंटेंट एग्जिस्ट कर रहा है, दैट मीन्स आई कैन सी, व्यू, रिट्रीव दैट कंटेंट एनी टाइम आई विश टू. सिर्फ हमारे पास क्या होना चाहिए, आई वॉन्ट टू लॉग इन टू द कंप्यूटर एंड माई अकाउंट, कहीं भी. सो एनीवेयर, एनी टाइम, एनी डिवाइस, I can log in and use my account. इसका सिंपल एग्जाम्पल चिल्ड्रन हम लोग कैसे ले सकते हैं. आप एक जीमेल अकाउंट बनाते हो और उसी जीमेल अकाउंट से योर फेसबुक इज connected, your Instagram posts are connected, your Netflix will be connected, your ये आप जो Google Meet करते हो, जो अपने Google Classroom में अपने आप को एडमिट किया हुआ है, all this is connected with one account. ठीक है. और मोर सिंप्लीफाइड मैनर, आप गूगल फोटोज में अगर आपने फोटोग्राफ्स डाल के रखते हो, पिछले 10 साल के भी फोटोग्राफ्स अगर आपने डाल के रखे हैं, आपको अवेलेबल होंगे वो फोटोग्राफ्स. किसी भी सोशल नेटवर्किंग साइट पे आपने फोटोग्राफ्स डाले हैं, वो भी फोटोग्राफ्स आपके अवेलेबल होंगे, बिकॉज यूजिंग क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस.
That means it uses internet and central remote server to maintain data and application. रिमोट मीन्स कहीं पे और है वो सर्वर, आपके पास नहीं है, इंटरनेट चाहिए और हमें वो कहीं रिमोट सर्वर से कनेक्टेड होना चाहिए. दैट मीन्स हमारा वो जो अकाउंट है कहीं तो कनेक्टेड होगा, हमारा डेटा हमारी एप्लीकेशन मेंटेन रहेगी. ठीक है. तो इन दिस टॉपिक वी हैव children different models of computing and different types of computing. So all this we'll be studying in a form of a presentation that I have prepared for you. Let us see this presentation. So first, what is cloud computing? Simplified definition है distributed computing on internet or delivery of computing services over internet. और ये services क्या थी? वही सर्विसेज, सर्वर्स, डेटाबेस, नेटवर्किंग, सॉफ्टवेयर, ये सब कुछ ओवर इंटरनेट. दिस इज कॉल्ड एज क्लाउड कंप्यूटिंग. ठीक है. तो यहाँ हमने जीमेल का एग्जांपल लिया था. आई टोल्ड यू जीमेल अकाउंट आपका. सो हियर इट इज रिटन जीमेल एज वन ऑफ द एग्जांपल. दिस इज व्हाट हियर इट इज रिटन हियर कि आप ईमेल अकाउंट में रिमोटली कहीं भी लॉग इन करते हैं और अपना आप एक्सेस कर सकते हैं. Now the children who have the Gmail account, they are there in the Google Classroom. It is not necessary you need to be in Mumbai to access your Google Classroom, is it? No. You can be anywhere. You can access Google Classroom क्योंकि आप Gmail के साथ कनेक्टेड. वो Gmail जो है वो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है. ठीक है. So all this is providing the services which offers the accessibility of the softwares. जब डिमांड करनी है तब हम सॉफ्टवेयर को एक्सेस कर सकते हैं. तो here again it is written cloud is a large group of interconnected computers. This is what I told you. Cloud refers to network और network का मतलब है a group of computers which are connected to each other. तो ये पीसी सेंट्रिक नहीं है. पीसी मतलब कंप्यूटर कहाँ पे है उससे रिलेटेड नहीं है. डॉक्यूमेंट सेंट्रिक है. क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमने कहाँ कहाँ से निकाल के देने हैं. ठीक है. देन वी कम टू द सर्विस मॉडल्स. नाउ अब सर्विस मॉडल्स जो हैं इसके, ये 3 सर्विस मॉडल्स हैं, SaaS, PaaS एंड IaaS. ठीक है. SaaS which is service, software as a service, platform as a service, infrastructure as a service. अगर आप नीचे से देखेंगे तो IaaS will be the lower layer और SSS is the upper layer. जो यूजर, जो एंड यूजर के पास जो लेयर जाती है वो SaaS है. और वहां पे क्या क्या हमें मिल जाता है? हमें सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क मिल जाता है. ठीक है. हमारे को वो सारे काम करने के लिए आपको क्लाउड प्रोवाइडर जो है वो मैनेज करता है सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन ऑन अ सब्सक्रिप्शन बेसिस पे. ठीक है. सब्सक्रिप्शन बेसिस पे आपका ये मैनेज हो रहा है. क्लाउड प्रोवाइडर कौन होते हैं? क्लाउड प्रोवाइडर्स होते हैं who provide us these services of cloud computing. जैसे AWS. AWS क्या है? Amazon Web Services. ठीक है. ये आपके क्लाउड प्रोवाइडर्स हैं. And they will maintain the control of the software environment. पूरा सॉफ्टवेयर एनवायरनमेंट, ऑपरेटिंग सिस्टम सब कुछ ही कंट्रोल करेंगे आपका. बट डज नॉट मेंटेन एनी इक्विपमेंट. कुछ भी इक्विपमेंट मेंटेन नहीं करेंगे. ये आपको प्रोवाइड करवाएंगे चीजें. ठीक है. स्काइप, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ SaaS. ठीक है. आप स्काइप पे कॉल कर रहे हो, आप सीधा सर्विस ले रहे हो बस. आप उसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते. यू कैन ओनली यूज दैट पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर.
ठीक है, तो देन वी हैव, अगर इसको इफ वी हैव टू सी इट लाइक दिस, PaaS, which is used by the application developers. It provides a platform on which जो सॉफ्टवेयर है कैन बी डेवलप्ड एंड डिप्लॉयड, उसको हम बना सकते हैं और फिर उसको यूज में लगा सकते हैं, ठीक है। हियर द क्लाउड प्रोवाइडर अलाउज द कस्टमर टू डिप्लॉय देयर ओन एप्लीकेशंस यूजिंग द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, टूल्स एक्सेट्रा। ऑब्वियसली आप एप्लीकेशन डेवलपर वाली फेज में हैं तो आप अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या प्रोवाइडेड है आपको, ऑपरेटिंग सिस्टम और नेटवर्क प्रोवाइडेड है। देन कम्स IaaS, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, ठीक है। अब यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर मीन्स सर्वर्स, नेटवर्क्स, एवरीथिंग। क्लाउड प्रोवाइडर से आपको ये चीजें लेनी पड़ेंगी ऑन अ पे टू गो बेसिस। आप पे करोगे आपको ये चीज प्रोवाइड हो जाएगी, ठीक है। क्या क्या प्रोवाइड होगा, सर्वर पूरा, नेटवर्क सब प्रोवाइड हो जाएगा। तो ये नेटवर्क आर्किटेक्चर जो सारा आपका है आपको इंफ्रास्ट्रक्चर वाले लेयर पे मिलेगा। अगर इफ यू वांट टू डेवलप समथिंग तो आपको ये प्लेटफॉर्म वाली लेयर पे मिलेगा। एंड इफ यू हैव टू यूज, अगर आप एक यूजर हो तो आपको सॉफ्टवेयर वाली लेयर पे मिलेगा, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, ठीक है। दिस इज द सर्विस मॉडल ऑफ अ क्लाउड कंप्यूटिंग। ऐसे हमारे क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं हम। अब आप कौन से सर्विस लेने वाले हो, हम लोग सब एंड यूजर्स हैं। वी ऑल टेक द सर्विस ऑफ सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। हम लोग प्लेटफॉर्म नहीं है, हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर वाले नहीं है। यू एंड मी, वी आर ऑल एंड यूजर्स, ठीक है। व्हाट वी आर डूइंग इज, कहीं पे सर्वर है, कहीं पे रिमोटली नेटवर्क है, हमने क्या किया है, हमने गूगल मीट कनेक्ट किया है और हम आपस में बात कर रहे हैं। तो हमें क्या क्या प्रोवाइड हो गया है, हमें सॉफ्टवेयर भी प्रोवाइड कर दिया उसने, नेटवर्क भी प्रोवाइड कर दिया है, ऑपरेटिंग सिस्टम भी प्रोवाइड कर दिया है। अंडरस्टूड? सो दिस इज क्लाउड कंप्यूटिंग service models. Now if you see a little more technical viewing of these services, आप क्या क्या मैनेज कर रहे हो और वेंडर क्या क्या मैनेज कर रहा है। वेंडर मीन्स प्रोवाइडर। इफ यू सी टू द लेफ्ट हैंड साइड, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस जो है, इतनी सारी सर्विसेज हैं। देखो, नेटवर्किंग है, स्टोरेज है, सर्वर हार्डवेयर है, वर्चुअलाइजेशन है, सर्विस, डेटाबेसेस, सिक्योरिटी, एप्लीकेशन, एवरीथिंग। एंड इफ यू सी द एप्लीकेशंस टॉप पे हैं, ठीक है। तो हमें क्या यूज करना है, एप्लीकेशन। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस अगर हम यूज करते हैं तो हम ये सब कुछ मैनेज कर सकते हैं, विच वी कैन सी विद इन द ब्लू। ऑल दिस इज दैट आई कैन मैनेज। अभी भी मुझे सब कुछ नहीं दिया है, ठीक है। आई कैन मैनेज द डेटाबेस, आई कैन मैनेज द इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी एंड द इंटीग्रिटी, रन टाइम, एंड आई कैन ऑब्वियसली कम टू द एप्लीकेशंस। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर प्लेटफॉर्म है तो आई एम जस्ट प्रोवाइडेड फॉर द डेवलपमेंट, एप्लीकेशन प्रोवाइड की जाती है, बाकी सब वेंडर मैनेज कर रहा है। एंड इफ यू एंड मी, then everything is managed by the vendor. We are unaware of anything that is happening. एप्लीकेशन कैसे चल रहा है, उसकी क्या सिक्योरिटी है, कौन सा डेटाबेस है, क्या सर्वर है, कहाँ स्टोर है, कौन सा नेटवर्क है, वी डू नॉट नो एनीथिंग, ठीक है। दिस इज अ मोर टेक्निकल व्यू ऑफ सीइंग दोज सर्विस मॉडल्स। एंड अगर सास है तो आप उसको कंज्यूम कर रहे हैं, अगर प्लेटफॉर्म पे हैं तो बिल्ड कर रहे हैं, IaaS है तो बना के उसको माइग्रेट कर रहे हैं, ठीक है। एंड ऑल दीज आर हैपनिंग इन दीज सर्विस मॉडल्स। सिस्टम मैनेजमेंट, टेक्निकली, नेटवर्क, सिक्योरिटी, ये सब कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर में हो रहा है। एप्लीकेशन डेवलपमेंट, डिसीजन सपोर्ट हो रहा है,
प्लेटफॉर्म पे, ये हमने पहले ही देखा है, जस्ट रिमेंबर प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है, दैट मीन्स दैट वी आर गिविंग यू द प्लेटफॉर्म टू डेवलप एन एप्लीकेशन, टू टेक द डिसीजन। ओके, और अगर आप सर्विसेज की बात कर रहे हो तो ये हम सब सर्विसेज यूज कर रहे हैं, ईमेल, ईआरपी, ये सब सर्विसेज है। These are all the softwares that we are using. ठीक है, so the service models of the cloud computing. Next we come to the types of cloud computing. अब हमने service models देख लिए, अब how are these service models deployed, ये कहाँ और कैसे यूज होते हैं। We can create a public cloud, we can create a private cloud, we can create a hybrid cloud and a community cloud which is a combination of community and hybrid, combined ही होता है। ठीक है, तो ये क्या है पब्लिक क्लाउड का, क्या मतलब है कि सर्विसेज आर डिलीवर्ड टू द क्लाइंट, बट कहाँ, कौन कर रहा है, थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी मतलब द क्लाउड प्रोवाइडर, दैट मीन्स द सर्विसेज आर स्टोर्ड हियर बट दे आर एक्सेस्ड ओवर द इंटरनेट एंड कैन बी यूज्ड बाय द जनरल पब्लिक। ठीक है, हमारे पास सर्विसेज है, आप यूज कर सकते हैं, बट all the hardware, software and the supporting infrastructure जो भी होगा, that is owned and managed by the cloud provider. It is very easily understandable. एग्जाम्पल देख के हमें समझ में आ गया कि Amazon में हम कुछ नहीं कर सकते, हम सिर्फ उनकी सर्विसेज को यूज करते हैं। Amazon की वेब सीरीज, Amazon के शॉपिंग, Amazon का जो भी आपने यूज करना है, यू जस्ट यूजिंग the Amazon as the one of the public cloud. ठीक है, then second is the private. अगर हम प्राइवेट की बात करेंगे, प्राइवेट इज विच इज समथिंग विद इन, हमारे कॉलेज का अपना है वो प्राइवेट हो गया, हमारी अपने घर का है वो प्राइवेट हो गया। सो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन इफ द सर्विसेज आर मैनेज्ड, दैट इज कॉल्ड एज प्राइवेट। The cloud infrastructure here is used exclusively by a single organization. ठीक है, सिंगल ऑर्गेनाइजेशन है ऑब्वियसली, तभी तो वहां पे रिस्ट्रिक्शन कम है कि हमें कोई बैंडविड्थ यूज करनी है, सिक्योरिटी एक्सपोजर की प्रॉब्लम कम है, क्योंकि हम एक अपनी ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स फॉलो कर रहे हैं। एंड ऑल दीज डेटा सेंटर्स, इस एग्जांपल HP डेटा सेंटर का दिया हुआ है, ऑल द डेटा सेंटर्स का अपना ही क्लाउड है जिसको वो फॉलो करते हैं विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। देन थर्ड इज हाइब्रिड, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक। हाइब्रिड का मतलब ही ये होता है, वी ऑल आर बायो स्टूडेंट्स, वी अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द वर्ड हाइब्रिड। तो वेयर आई कैन गेट द फंक्शनैलिटीज ऑफ बोथ public and private, I say I am talking about a hybrid cloud. इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, there is children, NASA is using a hybrid computing architecture for their one of their projects which is called Nebula. अभी ये बहुत ही लेटेस्ट प्रोजेक्ट है और वेरी ओल्ड तो नहीं होगा, but very latest hai, this I do not know, but Nebula is one of the project in which they are using the hybrid cloud functionalities, जिसमें जो R&D research and development है उसके लिए they are using private cloud, और जो शेयरिंग करना है डेटाबेस का या अपने उसका, तो वो उसके लिए वो पब्लिक यूज कर रहे हैं, तो हाइब्रिड हो गया। ठीक है, बिकॉज दे आर यूजिंग बोथ द टाइप्स ऑफ कंप्यूटिंग हियर, क्लाउड कंप्यूटिंग। सो पिक्टोरियल अगर आपने रिप्रेजेंट करना है, देखना है, तो ये सारे आपके क्लाउड्स हैं जहाँ पे रिसोर्सेज हैं, सर्वर्स हैं, डेटाबेसेस हैं, नेटवर्क्स हैं, ये सब आपके रिसोर्सेज हैं जो एक क्लाउड में बन रहा है। और इस क्लाउड को एक्सेस कर सकता है पब्लिकली और पब्लिक, और ये प्राइवेट भी है, क्योंकि प्राइवेट को एक पब्लिक से ही लेना पड़ेगा, पब्लिक मतलब प्रोवाइडर से ही लेना पड़ेगा। इन दोनों को अगर हमने यूज करना है देन इट बिकम्स अ
हाइब्रिड क्लाउड कंप्यूटिंग, ठीक है। Then children, these are the benefits of cloud computing. Of course, ये सारे benefits हैं, cost reduce हो रहा है because I am using I'm talking अगर आप Google Meet का example ले लो तो at a time I can talk to the whole of my class of 50 students, but Google Meet में मुझे सिर्फ network का वो bandwidth लग रहा है। हर एक अगर मैं 50 बच्चों को कॉल करूंगी that will be more costly, ठीक है। स्टोरेज इंक्रीज्ड है, ऑटोमेटिक है, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, मोबिलिटी है बिकॉज आप किसी भी डिवाइस से कहीं भी बैठ के कैसे भी कनेक्ट कर सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर मिनिमाइज कर देता है। मोबाइल से आप गूगल मीट कर सकते हैं, डेस्कटॉप से आप गूगल मीट कर सकते हैं, मोबाइल से आप लैपटॉप से आप गूगल मीट कर सकते हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रॉब्लम ही नहीं है यहाँ पे। सो दीज आर the points to explain what we mean by the word cloud computing. These are the examples, children, of infrastructure as a service, platform as a service, software as a service. And here I've already also told you Pinterest, Spotify, ये सब कुछ हम जो use करते हैं, this is also one of the example of software as a service. Okay, thank you, children.